جہاں سے میں جن چیئرز پہ بیٹھ کے میں پڑھا کرتا تھا، آج اسی جگہ پہ اسی کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں۔ لیکن آپ کو دکھا دیتا ہوں، حیدر علی آتش صاحب کے سفر ہے شرط مسافر نواز بہت رے ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں۔ 18-20 میرا ماسٹر پنجاب یونیورسٹی سے اور میں گولڈ میڈلسٹ ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ لوگوں کی ضرورت ہے جس میں پازیٹیوٹی ہو، مثبت اقدار، مثبت روایات بھی بہنیں نہیں، صرف بھائی یہ السلام علیکم دوستو، میں رانا حسن اور آج میں اپنی سب سے من پسند جگہ پہ ہوں، کیونکہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ شاید اسی ادارے کی بدولت ہے۔ آج میں موجود ہوں گورنمنٹ کالج کلور کوٹ کے اندر، اور یہاں ہم اس لیے آئے تھے کہ یہاں کے ایک بچے نے پنجاب لیول کے اوپر جو ہے نا وہ ٹاپ کیا ہے، ایک ایتھلیٹ ہیں وہ ایک، اور اس کے علاوہ میری جو تعلیم ہے وہ بھی یہیں سے ہے۔ اور میں آپ کو یہ پیچھے دکھاتا ہوں بلاک، یہ دیکھیے گا، یہ گورنمنٹ کالج ایسوسیٹ کالج۔ ابھی جو ہے میں گورنمنٹ کالج کے اندر موجود ہوں، اور میرے سب سے بہترین پروفیسر سر ایاز صاحب، ان کی کلاس ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے ٹائم لیا کہ 2 منٹ جو ہے نا کلاس کے اندر جو ہے میں ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، اور مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے۔ یہی ہے رفتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ بیٹا یہ آج اس کلاس میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اب یہ ہمارا بیٹا حسن یہ بھی اسی روم میں انہی چیئرز پہ پڑھ کے گیا ہے، تو آج یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ جہاں میں بیٹھ کے پڑھا ہوں تو اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں انہی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں اپنے ماضی میں جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا ہے، جو کچھ میں نے یہاں سے پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے یونیورسٹیز میں گیا ہوں، تو میں انہی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں اور انہی سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو خواب ہیں جو یہاں سے لے کے جائیں گے اور اس کے بعد کسی نیک مقصد کے لیے، کسی مقام تک پہنچنے کے لیے آگے تگ و دو کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی اس کا صلہ ضرور دے گی۔ تو اسی حسن آپ سے اسی موضوع پہ تھوڑی گفتگو کریں گے، آپ سے اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ جو یہاں پہ انہی چیئرز پہ بیٹھ کے گئے ہیں، اور پھر جس مقصد کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور جس کا وہ شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اسی محنت کے سہارے ان کو وہ مقام ملا ہے، اور انہوں نے جس پیشے کا انتخاب کیا تھا، جس پیشے کو انہوں نے چنا تھا، آج اسی پیشے کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے، ان کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اسی سلسلے میں یہ آپ کے پاس آئے ہیں اور اپنی گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے۔ اٹس اے پراؤڈ فیلنگ فار می کہ آج میں جہاں کھڑا ہوں، اور سر نے جو ہے تعریفیں زیادہ کر دی ہیں، میں اس قابل نہیں تھا، اور میں جو ہے نا ابھی کیمرہ کسی بھائی کو دوں گا۔ یار یہاں آنے کا نا میرا مقصد، میں رانا حسن ہوں، اور 2018 کے اندر میں نے یہیں یہ سر ہمارے ایاز صاحب کھڑے ہیں، انہی سے جو ہے نا تعلیم حاصل کی۔ سر ممتاز اللہ نیازی صاحب آپ اچھے سے جانتے ہوں گے۔ آج یہاں بولنے کا جو مجھے فخر حاصل ہے وہ صرف اور صرف انہی کی بدولت ہے، کہ میں وہ لڑکا تھا جو شاید اس کونے میں بیٹھا کرتا تھا، اور اس کو یہ خوف ہوا کرتا تھا کہ اگر میں 2 لفظ بول دوں گا تو شاید میرے ساتھ بیٹھنے والے مجھ پہ ہنسیں گے، لیکن ٹیچرز نے ہمیں سپورٹ کیا، اور یہاں بولنے کا جو ہے وہ ہمیں موقع دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس بہت بڑا جو ہے وہ چانس ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے بولنے میں جو ہے وہ ماہر ہو سکیں۔ سو آپ سبھی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی نے جو ہے کوشش کرنی ہے، غربت بہانہ نہیں بنانا، محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سبھی کو انشاءاللہ العزیز بہت بڑا آفیسر بنائے گی۔ آپ آئے ہی اس دن ہے، ابھی بزم ادب ہو رہا تھا، اور جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے، ابھی آپ سے ساری باتیں شیئر کی گئیں۔ گورنمنٹ کالجز جن بنیادوں پر آپ کی تربیت کر رہا ہے بیٹا، یہی چیز ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے بھائی نے، ہمارے دوست نے جس انداز میں بات کی، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس کا جو سرا ہے وہ گورنمنٹ
कॉलेज के सर जाता है, बेटा यहाँ पर हम जब आपको डाइस पे बुलाते हैं, यहाँ पर आने का कहा जाता है तो उसका एक मकसद होता है, और उसका मकसद यही है कि आप में ये सलाहियत पैदा हो कि आप बात करना सीखें, बात करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत आगे निकले हैं। राव हमाद साहब की बात हुई, अभी बिलाल साहब की बात हुई, यासिर बिलाल साहब की बात हुई, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लेक्चरर भी हो गए, CSP ऑफिसर भी वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो गोल्डन टाइम है बेटा, अवेल करें, अपने आप को बूस्ट अप करने की कोशिश करें, जिस लेवल पे आए थे उस लेवल पे नहीं जाना, कोशिश करें उससे बेहतर पोजीशन में जाए। मैं भाई को भी अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने एक पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, बिल्कुल व्यूज के चक्कर में तबाह करके रख दिया, अखलाकियात का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो इस तरह की व्लॉग की ज़रूरत है जिसमें पॉजिटिविटी हो, मुस्बत अक़दार, मुस्बत रिवायात की तरवीज हो। तो काबिल सताइश है आप, एक बार इनके लिए हैदर अली आतिश साहब के सफ़र शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे हज़ारहा शजर सायादार राह में है। कि मैं क्लास के अंदर ना बात कर रहा था कि राव हमाद साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, क्योंकि मैं इन्हें एज ए स्टूडेंट नहीं मिला, एज ए टीचर बल्कि मैं इन्हें एज ए दोस्त मिला था पहले, और फिर मुझे पता चला कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया और उसमें फर्स्ट पोजीशन लेने के बाद आज जो है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एज ए लेक्चरर जो है वो तालीम दे रहे हैं। जी भाई कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है कि मैंने यहीं से BA से यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लुरकोट से मैंने BA में किया और यहाँ से मैंने पोजीशन ली, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यहीं पे इसी कॉलेज में जहाँ से मैं जिन चेयर्स पे बैठ के मैं पढ़ा करता था, आज उसी जगह पे उसी क्लासरूम में मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि अगर हम ये अचीव कर सकते हैं तो आप भी अचीव कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं आप उसके लिए मेहनत करें और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको उसका सिला देंगे। हाँ भाई वसीम कुछ कहेंगे? याद आ रहा है? पूछ क्या याद आ रहा है? आएगा क्योंकि हम यहीं से पढ़े हुए हैं सारे। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए कॉलेज का मुंह देखे, दोबारा जाए ना। ये भाई हैं क्लरिकल स्टाफ लाइफ स्टॉक फार्म में गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए। ये भाई हैं, जानते हैं यार आपको, ये है नौमान, और ये भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के अब क्लरिकल स्टाफ में जो है इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है लग जाएंगे। बाकी की जो है कहानियाँ सुनाते रहेंगे आपको। मेरे भाई मेरे फ़ख्र कफ़ैतुल्लाह खान, इन्होंने जो है ना सूबाई लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल लिया है। मैंने नहीं देखा था आज तक ज़िंदगी में ना गोल्ड मेडल कैसा होता है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। और हाथ में पकड़ा दिल था भाई, अल्लाह हमें भी देता, लेकिन हमारा ये फ़ख्र, हमारे इलाके का फ़ख्र, हमारी ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इस तरह के एथलीट और सारे भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं। यहाँ का टैलेंट जो है, बहुत सारा टैलेंट है यहाँ में, क्योंकि अगर इनको सपोर्ट किया जाए ना सरकारी लेवल पे या जिस तरह भी इसको सपोर्ट किया जाए तो इंशाल्लाह यहाँ से बहुत सारे एथलीट निकल सकते हैं। को वो खुशी ये है कि जब इंसान कुछ भी करके घर पहुँचे तो हमारी जो वालदा है जिन्होंने मेहनत की होती है, वालिद साहब होते हैं, तो उन्हें जो है ना दिल के अंदर जो है ठंडक पड़ जाती है। क्योंकि एक बार जो है ना गलती से मैंने भी सेकंड पोजीशन ली थी स्पीच कंपटीशन के अंदर, तो जब मैं घर गया था ना तो अम्मी जो है खुशी से रोने लग गई थी। मैं इन भाइयों से भी पूछूंगा क्योंकि इन्होंने पंजाब लेवल के ऊपर कम्पीट किया जिसके अंदर 8 डिवीजन्स आती हैं, जिसके अंदर सरगोदा डिवीज़न और बाकी जितनी भी हैं। तो भाईजान हमें बताएं कि क्या तासुरात थे आपकी अम्मी के या अब्बू के जब आप ये गोल्ड मेडल लेके घर पहुंचे थे? जी जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो मुझे एक दोस्त की कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार आप जो है ना फेसबुक पे आ गए हैं, फेसबुक पे जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर के आसपास जो है ना लड़के आपको देख के ना खेल रहे हैं उसी तरह। सही है, यानी मोटिवेशन मिली है उन लोगों को। बिल्कुल। जब घर पहुंचा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, वालिदा भी बहुत खुश थी, वालिद भी बहुत खुश थे। मुझे यकीन है कि उनकी आंखों में जो है आंसू आ गए होंगे जज्बात के मारे। जी सर, जब मैं जा रहा था तो वो रोने लगी और मैंने उनको हौसला दिया कि यार आपको बेटा पंजाब लेवल पे जा रहा है और आप रो रहे हैं। मैंने उनको हौसला दिया और जब घर लौटे होंगे उसका मंजर बताएं मुझे ना। जब घर आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी खुशी से यह उनके आंसू आ गए थे। माशाल्लाह।
ये यार सबसे बड़ी बात जो है ना, ये और भी स्टूडेंट्स खड़े हैं मेरे पास, कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं इनके अंदर, है ना लाइक स्टूडेंट मेरी तरह के, तो टॉपर हैं आप। ये रोशन कल मैं इसे भी पढ़ाता रहा हूँ, मैं ये मौलाना साहब बन गए हैं जो अभी, और ये भी हैं, ये दोनों को मैं पढ़ाता रहा हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह आज हम फ़ख्र से इनकी वीडियो बना रहे हैं कि इन्होंने पंजाब लेवल पे कम्पीट किया, कल ये जितने भी हमारे बहनें नहीं सिर्फ भाई, ये जो भाई हैं ना, ये भी कल जो है यहाँ कम्पीट करें और हमें जो है फ़ख्र हो कि हमारे स्टूडेंट भी हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। बस तरफ चलते हैं जहाँ जो तकरीबात होती हैं, और अक्सर जो है ना यहाँ पे कभी कभार जो है हम गलती कर लेते थे बोलने वाली, क्योंकि ये दौर है ना, थोड़ा बंदे का जहन ऐसा होता है कि वो चाह रहा होता है क्लासेस से आज़ादी हो, और जब यहाँ से निकल जाते तो फिर यादें बाकी रह जाती हैं, जैसा कि आज हमें याद आ रही है हर चीज़। और मेरी वीडियो देखने वाले काफ़ी लोग जो कामयाब हो चुके हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के अंदर, वो जो है ना यहाँ से पढ़े होंगे, और ये कॉलेज देख के, ये स्टूडेंट्स देख के उन्हें ये फ़ील हो रहा होगा कि उनका जो कॉलेज टाइम था, वो लाइफ थी, इन्हीं के अंदर नज़र आती है। और मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह के ना मैं स्टूडेंट था, जैसे घूमा करता था यहाँ पे, ये भी उसी तरह से जो है ना यहाँ है। और ये हॉल है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं। ये क्लैपिंग वाली आवाम है, सर से मैंने इजाज़त ली थी, और ये भी ना खुश हो रहे हैं हमारी तरह। जब कोई आया करता था ना तो इंसान को खुशी होती थी। सामने फेथ, डिसिप्लिन एंड यूनिटी, ये हमारी कौम का एक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ है। और ये हॉल का नज़ारा है, और इंशाल्लाह किसी दिन कोई प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, बल्कि मिलाद वाला होने वाला है, मैं उसमें इंशाल्लाह ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा और आपको जो है मज़ीद जो अपने कॉलेज की अपनी यादें ये दिखाऊँगा। तरह का एक स्टूडेंट था, 2018 के अंदर मैंने यहाँ से डिग्री की है FSC पे इंजीनियरिंग, और उसके बाद मुझे एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के अंदर। क्योंकि आपके अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिनका ये ख्याल होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। आप मेहनत करें, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा, जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है, और जहाँ तक आप जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं। ये पिछला जो मेरा एक शॉट है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप ही के कॉलेज का एक स्टूडेंट पूरे पंजाब के अंदर गोल्ड मेडल लेके आता, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैंने फिर हाथ लगा के देखे कि क्या होता है यार, ये एक फ़ख्र है हमारे कॉलेज के लिए, और आप सभी के लिए भी एक मोटिवेशन है कि मैं पहले भी यही करके आया हूँ पिछली क्लासेस के अंदर, कि यहाँ इन चेयर्स पे बैठ के मेरे ख्वाब हुआ करता था कि एक वक्त आए मैं बग़ैर डर के, बग़ैर खौफ के अपने आप को जो है लोगों के सामने खड़ा होकर बोल सकूँ। और वो इस वजह से हुआ कि हमारे असातिज़ा कराम, जिस तरह के आपके टीचर खड़े हैं मेरे साथ, इनकी इज़्ज़त करके, मेहनत करके, और फिर अल्लाह पाक ने जो है अपनी माँ की, बाप की दुआएं, उन्होंने जो मेहनत की आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं वो यहाँ पे। और अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करेगी। उसकी बहुत बड़ी बड़ी मिसालें ऐसी हैं कि जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ और अब फिर कर रहा हूँ। रव हमाद आपके प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो इसी कॉलेज से पढ़ के गए हैं। सर बिलाल साहब, उन्होंने बोर्ड के अंदर पोजीशन ली थी और इसी कॉलेज से पढ़ के गए हैं। और मैं ये जो 2-4 लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इसी कॉलेज की बदौलत है कि मैं यहाँ से पढ़ के गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने कोई भी ऑफिसर हो, चाहे जितनी तादाद हो, मेरे अंदर डर खौफ नहीं होता कि सामने बोलूँगा तो फलां क्या कहेगा। मुझे फ़ख्र होता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, और आप सभी को भी ये फ़ख्र करना चाहिए कि जब आप यहाँ से निकलें और ना फिर मुझे आपके अंदर अपना कॉलेज टाइम याद आता है कि यहाँ बैठा, ये ख्वाब, ये सोच लिए कि अल्लाह वो दिन लाए कि जिस दिन मैं यहाँ खड़ा होकर बोल सकूँ। आपकी ख्वाहिश होगी सभी की, लेकिन आपने करना ये है कि स्टेज पे आना है, चाहे आप तिलावत करने आएँ, कोई एक शेर पढ़ने आएँ, कुछ भी करना चाहें, आएँ, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि ये चीज़ इंसान को बहुत ऊपर लेके जाती है। मैं एक वक्त था, वो एक हमारे बिलावल साहब हैं, उनकी टांगें कांप जाती हैं, किस तरह वो कहते हैं, कांपे टांग जाती हैं। मेरी जो है ना वो कांपे टांग जाया करती थी और मैं डरा करता था। फिर सर मुमताज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे पूरे कॉलेज को जो है वो मोटिवेट करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बोलने का हुनर सिखाया, और तमाम के तमाम जो चीज़ें आज यहाँ बोल रहा हूँ तो शायद उन्हीं की बदौलत है। ये आप सभी के लिए पैगाम है, यहाँ के बोलना शुरू करें और अपने आप को कोई गरीब घराने का मत समझा करें, क्योंकि मैं जिस
बाप का बेटा हूँ, वो मज़दूर था। मैं कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मेरे वालिद साहब मज़दूर थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हलाल कमाई और हमारे माँ बाप की मेहनत, मेरी मेहनत, मेरे टीचर्स की मेहनत की बदौलत मैं आज यहाँ बोलने के काबिल हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी ये ख्वाहिश और ये ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। एडिंग करना चाहूँगा जी, कि पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। इस और तरह ही है इसमें जी। कोई शक नहीं है। हाँ जी, ये जो तलबा बैठे हैं ये इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें पढ़ाने वालों में अक्सरियत तादाद ऐसी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के फाज़रीन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं 2018-20 मेरा मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी से और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट इदारे से या प्राइवेट? मैं गवर्नमेंट कॉलेज मनकेरा में पढ़ता रहा हूँ। माशाल्लाह, गवर्नमेंट कॉलेज मनकेरा यही से चीज़ FA हमें है। प्रमोट करनी है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को अगर टाइम दिया जाए और मेहनत की जाए, आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ये गवर्नमेंट कॉलेज की मस्जिद है जहां आप नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दूसरे इदारे हैं गवर्नमेंट की जो है सहूलियात बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके अंदर लाइब्रेरी भी है, चूँकि आज जुमा था सो इसलिए मैं वहाँ विज़िट नहीं कर सका क्योंकि टाइम बहुत कम था। और बाकी जो है एंडिंग और उसकी तरफ चलते हैं और बाकी दिखाता हूँ मैं। कहाँ? और ये बेर लगे हुए हैं। हम ना सर्दियों में बेर भी यहाँ से खाया करते थे और यहाँ एक ट्यूबवेल हुआ करता था, शहतूत लगे होते थे। हाँ है, वो भी सामने है। और फिर बेर मिल गए। हाँ। बहुत ज़बरदस्त यार, ये हैं मेरे ख्याल से। खा रहे हैं भाई, माशाल्लाह यार। खाए हैं यहाँ पे हमने, ये खाए हैं, दूध खाए हैं। हमारे कॉलेज में ना तकरीबन हर चीज़ मौजूद है। वो शहतूत थे, बेर थे और अमरूद भी थे। अमरूद हैं, आम आम भी है, है। अनार के तरह कुछ हैं यहाँ पौधे हैं। यार ये खाएं पिएं, मौज भी करें और साथ पढ़ाई भी। ये खसूसियत है गवर्नमेंट कॉलेजेस। टाइम की किल्लत होने की वजह से ना कुछ चीज़ें जो है मैं आपको दिखा नहीं सका, लेकिन दोबारा मेरा चक्कर अगर लगता है किसी तकरीब में या किसी और सिस्टम के तहत तो मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाऊंगा। और अब हम जो है ना घर से कॉल आ जाती है यार, ये वखरा मसला है, तो निकलते हैं उस साइड से। तो आपको अपना पार्किंग स्टैंड दिखा देते हैं जहाँ हम कभी मोटरसाइकिल हुआ करता था, है अभी भी वही, वो वहाँ खड़ा करते थे और फिर अपनी क्लासेस की तरफ जाना। साइकिल पे आया करता था। ये जो है साइकिल पे आया करते थे। और मेरे पास ये भाई पर्दा करके जा रहे हैं, पता नहीं कैमरे से डरते हैं या फिर मेरे ना पास काले होने का डर। हाँ, ये भी बहुत बड़ा डर है यार। तो अब जो है ना वापसी की राह देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। खड़ा ना